Hello guys, I welcome you all to the day 130 of our series, and in today's session we are going to learn how to convert present continuous tense from its active voice to its passive voice. So now let's move forward. Here was your yesterday's task. Let's go through it first. So here in this exercise you were supposed to cross out the error in each sentence and then write the correct version of that word at the end of the sentence. Cash will need to be divested from one project to another. So here the correct word would be diverted. Diverted, not divested. Next is pollution is putting a heavy toll on seabird population. So pollution is not putting, pollution is taking a heavy toll. Next है, the factory puts a substantial danger to wildlife in the area. So the factory not puts, the factory poses a substantial danger. Next is, you hear people talk about the genes pool all the time. It is not genes pool, it is gene pool. Here gene is used as an adjective. And we always use adjectives in singular format. That means we usually avoid writing ses or ies at the end of any adjective. Next is, I'm worried that new developments are encroaching on the countryside. So we always use preposition on or upon after this word encroaching, not encroaching in the countryside. It would be encroaching on or encroaching upon the countryside. And by this word countryside means the rural side. The rural side, or I would say that the outskirts of any populated area. Next is, the horn of the animal is sought over by poachers. It's not sought over, it is sought after. पीछा किया जाता है, sought after by poachers. Next is, it is important to raise fund to support conservation. To raise funds, not fund. If we are talking about money, in that case, always use it in its plural form, funds. Next is, this poses a threaten, not a threaten. This poses a threat. Threaten would be our adjective form. And here article is given. That's why we have to use noun form after this article. So this poses a threat to both humans and wildlife. Let's move to the next exercise. And here you are supposed to write the synonyms of these words at the end of the sentence. So let's start by the first sentence. There is a little probability of things improving soon. So probability, we can also write likelihood. Likelihood is the synonymous word for probability. Next, land. You can also write territory. Next is illegal hunting, poaching. Poaching. Next, a large, heavy animal with a horn on its nose, rhino. Rhino, or complete it would be rhinoceros. Next is, the animal is extremely protective of its land. So the animal is extremely territorial. Territorial. And last one would be a situation with very little money, poverty. Poverty. Let's move to the next exercise. क्या मेरी माफी स्वीकार की जाएगी? तो यहाँ पे हमारे सारे ही सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर के थे, यानी कि यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब विल शैल हम यूज कर सकते थे और विल शैल के बाद में बी V3 ये स्ट्रक्चर हमें यूज करना था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. क्या मेरी माफी स्वीकार की जाएगी? तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में क्या रहता है, ये व्हाट वाला क्या नहीं है. यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस. तो यहाँ पे हो जाएगा विल माय और माफी यानी कि अपॉलॉजी. विल माय अपॉलॉजी बी एक्सेप्टेड और बी एक्सेप्टेड
यहाँ से हमारा स्टेटमेंट पैसिव में कन्वर्ट हो गया, बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है, क्या इंसानों की जगह कंप्यूटर्स के द्वारा ले ली जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा will humans or human beings, will humans be replaced by machines or by the machines, computers, by the computers। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बी रिप्लेस्ड, यहाँ पे हो गया हमारा पैसिव वर्जन। नेक्स्ट है, क्या कल हमारा केमिस्ट्री टेस्ट होगा, अगेन will tomorrow our chemistry test be conducted और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको इस तरह से भी आप कह सकते थे, will our chemistry test be conducted tomorrow। नेक्स्ट है, क्या 2021 तक कोरोना का इलाज मिल पाएगा, तो यहां हो जाएगा will कोरोना का इलाज, the cure for कोरोना मिल पाएगा, be found और 2021 तक, so by 2021 will the cure for corona be found by 2021। अब हमें नहीं पता कौन ढूंढेगा, लेकिन हमें बस ये क्वेश्चन करना है कि क्या ऐसा हो पाएगा, तो ये पैसिव वर्जन हो गया। नेक्स्ट है, क्या इस साल वर्ल्ड कप खेला जाएगा, will the world cup be played this year। नेक्स्ट है, इस साल वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, अब यहाँ पे कहाँ यानी कि वेयर, तो इस क्वेश्चन वर्ड को उठा के एज इट इज पूरी स्टेटमेंट के सामने रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा वेयर विल द वर्ल्ड कप बी प्लेड दिस ईयर, कि अब कहाँ खेला जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, कल कितने कैदियों को दूसरी जेल में भेजा जाएगा, कितने कैदियों को, so how many prisoners will be sent और be sent, यहाँ हमारा पैसिव स्ट्रक्चर आ गया, how many prisoners will be sent to the another यानी कि दूसरी, to the another jail or prison tomorrow। How many prisoners will be sent to the another jail tomorrow। नेक्स्ट है, टॉम क्रूज की अगली फिल्म भूतों पर आधारित होगी, द नेक्स्ट मूवी ऑफ टॉम क्रूज, या फिर ये भी हो सकता था टॉम क्रूज उसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस, नेक्स्ट मूवी, टॉम क्रूज नेक्स्ट मूवी will be based on ghosts, आधारित होगी based on, और be based यहां से हो गया हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, बिग बॉस में आपका स्वागत है, वेलकम टू बिग बॉस, आपकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि सिर्फ यही वाला सेंटेंस जो है वो पैसिव में है, तो ये हो जाएगा योर each and every step will be monitored आपकी हर हरकत पर, हर स्टेप पर, और आप ऐसे भी कर सकते हो your every movement will be monitored। नेक्स्ट है, आपका पार्सल आप तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचा दिया जाएगा, तो ये जो फ्रेज है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, इसके लिए हम ये यूज करते हैं as soon as possible,
तो ये हो जाएगा योर पार्सल विल बी डिलीवर्ड टू यू, और आगे as soon as possible। नेक्स्ट है, क्या मेरा फोन कल ठीक हो जाएगा? will my phone be repaired tomorrow? और यहाँ पे be repaired, तो इससे हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये था आपका टास्क प्रीवियस डे का। नेक्स्ट में मूव करते हैं। एक ये टास्क भी मैंने आपको दिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आपको रिवाइज करना था। डायरेक्ट इस पे आते हैं अभी। ये स्ट्रक्चर था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यानी कि इज एम आर, ये जो बी है ना यहाँ पे, बी यानी कि इज एम आर, इनमें से हमें यूज करना है प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। और नेगेटिव के केस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। इंट्रोगेटिव आप इजीली बना सकते हो। डायरेक्ट आते हैं आप इसके कन्वर्जन पे। एक्टिव वॉइस में जैसे कि हमने अभी देखा इज एम आर, और उसके बाद में अब जैसे यहाँ पे वर्ब डू, इसे एज ए वर्ब लिया गया है यहाँ पे, तो यानी कि V1 ING, सो डूइंग, इज एम आर डूइंग, ये थी हमारी एक्टिव वॉइस। पैसिव में हम क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें गिवन होती है उसी को हम रखते हैं। अगर हमें गिवन है तो उसी को रखेंगे, अगर गिवन नहीं है तो हमें और लगानी पड़ेगी, जैसे डू, डज और डिड के केस में हम करते हैं यूजुअली। अगर गिवन है तो हम उसी को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे पैसिव में भी। तो इज एम आर गिवन है, इज एम आर को हम यूज कर लेंगे। उसके बाद में पैसिव का स्ट्रक्चर होता है हमारा V3 हमेशा आएगी और उससे पहले बी रहेगा। तो यहाँ पे अगर इज एम आर के बाद में देखिए आप एक बार, इज एम आर के डायरेक्ट बाद में अगर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देती हूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हो जाएगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं रह पाएगा, और हमें तो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाना है। और कॉन्टिन्यूअस में कंडीशन होती है कि आईएनजी, इसी से तो हमें पता चलता है कि कोई चीज कंटिन्यू है, जारी है अभी भी। दैट मीन्स हमें आईएनजी फॉर्म तो यूज करनी पड़ेगी। इस वजह से इज एम आर और V3 के बीच में इस आईएनजी फॉर्म को डालने के लिए हम बीच में बीइंग लगाते हैं। तो ये हो जाता है इज एम आर बीइंग और V3। तो ये हो गया इज एम आर बीइंग डन। एग्जाम्पल में आते हैं, somebody is cleaning the room at the moment। तो is cleaning है, ये ing है। तो अगर ing यहाँ पे देखिए, एक्टिव में अगर हमें ing गिवन है तो पैसिव में भी हम ing लगाएंगे। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा somebody is cleaning the room is being cleaned। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। नेक्स्ट है somebody is watching us, कोई हमें देख रहा है। अब यहाँ देखिए is watching, is एम आर V1 ING, ये हमारा एक्टिव था। us आगे जाके हो गया हमारा V। अब V है, V के लिए आप is यूज करोगे या R यूज करोगे? ऑब्वियसली यहाँ पे is somebody की वजह से आया हुआ था, यहाँ V है तो हम R को लेके आएंगे, V R, और being हमें ऐड करना होता है, सो being, और इसके बाद में V3 जो मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी, being watched। somebody को यहाँ पे एंड में हम नहीं यूज करेंगे, by somebody नहीं होगा, ये हो गया we are being watched। नेक्स्ट है is someone helping you, फिर से देखिए is और V1 ING, ये हमारा एक्टिव है कि क्या कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है। इसका पैसिव हो जाएगा क्या तुम्हारी हेल्प की जा रही है। तो इसमें अब देखिए is हमने यूज किया क्योंकि someone के साथ में हम is को यूज करते हैं, लेकिन अब क्या है, क्या तुम्हारी हेल्प की जा रही है। तुम्हारी you, इस बार you आ रहा है सेंटेंस में, तो इस वजह से you के साथ में हमें R लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा R you, और being ING भी हमें रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्टिव में ING गिवन है। being और मेन वर्ब जो है वो हमारी हमेशा ही V3 में रहती है। Are you being helped? आई होप आपको इतना ये क्लियर हुआ हो। V3 देखिए मेन वर्ब जो है वो हमेशा ही V3 में रहेगी अगर आपको पैसिव बनाना है तो। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आते हैं। दे आर बिल्डिंग अ न्यू रोड इन द मेन मार्केट, वे मेन मार्केट में नया रोड बना रहे हैं।
बिल्डिंग आईएनजी है, दैट मीन्स जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमें आईएनजी तो रखना होगा, और आईएनजी भी लगा के ही हम रख सकते हैं पैसिव में। और मेन वर्ब क्या थी यहाँ पे? बिल्डिंग, यानी कि बनाना। तो मेन वर्ब अगर बिल्ड ये थी तो इसी की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी पड़ेगी पैसिव के केस में। तो बिल्ड की थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म में टी आ जाता है एंड में, डी की जगह पे बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड ये हो जाता है। तो देखिए अ न्यू रोड इज बीइंग बिल्ट, और आगे एज इट इज रहेगा इन द मेन मार्केट, इन द मेन मार्केट सेम रहेगा वो। बस यहीं से पैसिव की जरूरत थी, इज बीइंग बिल्ट। आर बिल्डिंग का हो गया इज बीइंग बिल्ट, बनाया जा रहा है, कि वो बना रहे हैं, और पैसिव हो गया बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है जीपीएस इज कैलकुलेटिंग द रूट टू योर डेस्टिनेशन। जीपीएस कैलकुलेट कर रहा है रूट आपके डेस्टिनेशन का। तो आपके डेस्टिनेशन का रूट कैलकुलेट किया जा रहा है जीपीएस के द्वारा। इसमें हो जाएगा, देखिए फिर से आईएनजी है एक्टिव में, तो पैसिव में भी हमें आईएनजी चाहिए, और पैसिव में आईएनजी यानी कि बी में आईएनजी लगा दो। जैसे ही बी आ गया तो मेन वर्ब को आपके थर्ड फॉर्म में रख दो। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसीलिए हमें अलग से याद करने की कुछ भी जरूरत है ही नहीं। तो ये हो गया, देखिए द रूट टू योर डेस्टिनेशन, इससे हम स्टार्ट करेंगे इज, और इज फिर बीइंग ऐड कर देंगे, बीइंग, और मेन वर्ब थी हमारी कैलकुलेट, तो इसका हो जाएगा कैलकुलेटेड बाय जीपीएस। या फिर अगर आप डायरेक्ट यहां तक भी खत्म कर देते इज बीइंग कैलकुलेटेड, तब भी आपका जो पैसिव है वो करेक्ट होता, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं होता कि आप बाय प्लस सब्जेक्ट बताओ भी। द रूट टू योर डेस्टिनेशन इज बीइंग कैलकुलेटेड। नेक्स्ट में मूव करते हैं। इस बार थोड़ा सा हार्ड लेवल है, हिंदी से इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है। डायरेक्ट एक्टिव नहीं गिवन, हमें एक्टिव भी बनाना पड़ेगा, फिर उसका हमें पैसिव भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। कोई आपको बुला रहा है, कोई, अब हमें नहीं पता कौन है, बस कोई है, तो यहाँ पे इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं समवन। समवन या somebody आपको बुला रहा है, इज कॉलिंग यू, somebody इज कॉलिंग यू। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? आपको बुलाया जा रहा है, आपको यू से स्टार्ट हो गया, सो यू। अब यू के बाद में इज नहीं लगेगा, हमें पता है यू के बाद में तो आर रहता है, यू आर। और देखिए हिंदी में हम किस तरह से पहचानते हैं कि कोई काम ऐसा हो रहा है, यानी कंटिन्यूटी हमें शो हो रही है, प्रेजेंट टाइम की कंटिन्यूटी, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए यू आर बीइंग, बीइंग कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड, कि बुलाया जा रहा है आपको। नेक्स्ट है, और यहाँ पे आप बाय समवन बाय समबडी नहीं यूज करोगे। नेक्स्ट है कोई दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटाना, नॉक एट द डोर। तो कोई है, फिर से समवन या somebody is knocking at the door। नॉक के बाद में एट प्रपोजिशन हमेशा यूज की जाती है, नॉक एट द डोर होता है, ना कि नॉक द डोर। देखिए somebody is knocking at the door, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा the door, क्योंकि दरवाजे से स्टार्ट हो रहा था सेंटेंस। the door is being knocked, knocked और at, एंड में आप at जरूर लगाओगे, क्योंकि देखिए नॉक एट, इसके साथ में फिक्स है, एट तो आएगा ही। कुछ वर्ड्स के साथ में फिक्स प्रपोजिशन होती है कि उनके साथ में वो प्रपोजिशन तो आएगी ही आएगी, वो चाहे आप एक्टिव में रखो या पैसिव में रखो। एक्टिव में था नॉकिंग एट हो गया, और पैसिव में हो गया नॉक्ड एट। द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट। समबडी को यहाँ पे भी हम नहीं यूज करेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। अभी प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगी 2 एक्सरसाइजेस। डायरेक्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी वाले में हम आज बात करेंगे मनी मार्केट्स के बारे में, कि इसमें मनी मार्केट में इंक्रीज के लिए और डिक्रीज के लिए, कोई भी चीज अगर बढ़ती है या घटती है तो उसके लिए हम कितने अलग अलग टाइप के वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। मूवमेंट्स जो होती हैं मार्केट में उनको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, वो सब देखेंगे हम आज के इसमें वोकैबुलरी पार्ट में। फर्स्ट वर्ड है सोर। सोर यानी कि इंक्रीज होना। देखिए इन सभी वर्ड्स के कहीं ना कहीं मीनिंग इसी तरह से बनते हैं। इंक्रीज होना, स्ट्रेंथन होना यानी कि मजबूत होना, बढ़ते रहना, कोई अचानक से बढ़ रहा है, कोई ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सोर,
सोर यानी कि क्विकली या सडनली बढ़ जाना, राइज कर जाना, इंक्रीज कर जाना। एग्जाम्पल हो गया जैसे शेयर प्राइसेस हैव सोर्ड, अचानक से बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है सर्ज इन समथिंग, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन इस बार अमाउंट या वैल्यू के केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, किसी चीज की वैल्यू बढ़ रही है, किसी चीज की अमाउंट बढ़ रही है। और यहाँ पे भी सडन इंक्रीज, अचानक से अगर वो बढ़ रही है तो हम यूज करेंगे सर्च इन समथिंग। ये दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, डिफरेंशिएट नहीं करना इन दोनों में, सिनोनिम्स है। द मार्केट इज नाउ एक्सपेक्टिंग अ सर्च इन द वैल्यू ऑफ यूरो, यानी कि यूरो की वैल्यू में एक मुनाफा जो है, एक बढ़त को एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट अभी। नेक्स्ट है गेन, गेन यानी कि इंप्रूवमेंट होना, इंप्रूवमेंट के लिए भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं गेन, और प्रॉफिट के लिए भी हम इस वर्ड को यूज कर देते हैं। द डॉलर मेड सिग्निफिकेंट गेन्स, तो यहाँ पे बात हो रही है इंप्रूवमेंट की, कि डॉलर ने महत्वपूर्ण अभी इंप्रूवमेंट की है। सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट, गेन यानी इंप्रूवमेंट, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा लॉस, गेन का ऑपोजिट हो जाता है लॉस। और जहां पे ये गिवन है SYN यानी कि सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग, देखिए सौर, इसके लिए हम ये मीनिंग भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए सिनोनिम भी हम यूज कर सकते हैं रॉकेट, यानी कि रॉकेट की तरह से बढ़ना, एज अ वर्ब यूज होगा फिर ये। नेक्स्ट है हाइक, हाइक का भी वही मीनिंग होता है, अचानक से ऊपर उठ जाना, ऊंचे वाले लेवल पे चले जाना। अ सडन और सिग्निफिकेंट यानी बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रीज किसी चीज में, किसी लेवल में, किसी की अमाउंट में, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर लेते हैं हाइक को। अनदर हाइक इन द रेट इज पॉसिबल, एक और उछाल पॉसिबल है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा कट, काट दिया जाना, हाइक और कट। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन, इसके नाम से आपको पता चल गया होगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, तो स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, इसका उल्टा हो जाएगा वीकन, कमजोर बनाना, ऑपोजिट है ये इसका। द येन विल स्ट्रेंथन, कि जो येन है वो स्ट्रेंथन होगा, यानी कि वो मजबूत बनेगा। मजबूत होना या बनाना दोनों के केस में हम यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है रैली, अब रैली हम तब यूज करते हैं किसी चीज की वैल्यू पहले गिरती है अचानक से, फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है, वहां पे इस वर्ड को यूज किया जाता है इंक्रीज इन वैल्यू आफ्टर अ पीरियड व्हेन इट हैज फॉलन, गिरने के कुछ टाइम बाद में जब वो वापस से उठती है। रिकवर या बाउंस बैक, ये बहुत कॉमन टर्म है जो यूज की जाती है, बाउंस बैक, फिर से उछल गई वो, रिकवर किया। द पॉन्ड रैलिड लेटर इन द डे, यानी कि दिन में, बाद में जो पॉन्ड है उसकी वैल्यू बढ़ गई। नेक्स्ट वर्ड इज बॉयंट, अब बॉयंट को यूज किया जाता है किसी उस पर्सन के लिए जो कॉन्फिडेंट हो बहुत ज्यादा, या फिर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के केस में इसको यूज करते हैं बॉयंट ऑब्जेक्ट, तो यानी कि जो सरफेस लेवल पे तैर रहा हो, जो डूबे ना, जो सरफेस पे ही तैरता रहे। स्टेइंग एट अ हाई लेवल, जो हाई लेवल पे ही रहे, जो नीचे ना आए उससे। और ह्यूमन बीइंग के केस में हेल्दी, कॉन्फिडेंट, उसके इसके लिए भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं बॉयंट। द मार्केट इज स्टिल बॉयंट, यानी कि अभी भी वो स्टेबल है, बॉयंट स्टेबल भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्नैप समथिंग अप, अब देखिए मार्केट में फेस्टिव सीजन में क्या होता है, लगभग सेल लगती है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते दामों पे बेच दिए जाते हैं, तो उसी के लिए ये सिनोनिम, उसी के लिए वर्ड, ये फ्रेज यूज होता है स्नैप समथिंग अप, बाय समथिंग क्विकली यूजुअली व्हेन इट इज चीप और अवेलेबल, जब वो सस्ते में मिल रही हो या आपको मिल ही रही हो, पहले तो अनअवेलेबल थी लेकिन अचानक से वो अगर आपको मिलने लगी तो तुरंत उसको खरीद लो आप, तो वहां पे इस वर्ड को यूज किया जाता है, इस फ्रेज को यूज किया जाता है। तो एडवाइस आपके लिए यही है कि जो शेयर्स हैं अभी अभी से उनको खरीद लो आप, जब तक कि वो सस्ते हैं, जब तक वो अवेलेबल हैं, चीप एंड अवेलेबल हैं, क्योंकि बाद में शायद ना खरीद पाओ। नेक्स्ट है प्लमेट, अच्छा इसमें स्लाइड में जितने भी हमारे वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं सभी नीचे जाने के सेंस में यूज किए जाएंगे। प्रीवियस में क्या था कि सब में इंक्रीमेंट दिखाया जा रहा था, कि ऊपर चढ़ने के या उछाल आने के जितने भी वर्ड्स अलग अलग हम यूज कर सकते थे वो किए, यहाँ पे सभी में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। प्लमेट, प्लमेट यानी कि अचानक से गिर जाना, फॉल सडनली एंड क्विकली, और इसका सिनोनिम ये भी हम यूज कर सकते हैं प्लंज, द वैल्यू में प्लमेट इवन मोर, या फिर द वैल्यू में
प्लंज इवन मोर, जो वैल्यू है वो और ज्यादा गिर सकती है। स्लम्प, स्लम्प हो जाएगा कि बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट आ जाना। फॉल बाय अ लार्ज अमाउंट, जैसे इकोनॉमिक स्लम्प, यानी कि इकोनॉमी में बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट आई है, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा इकोनॉमिक स्लम्प का इकोनॉमिक बूम, यानी कि बूम फिर से वही इंक्रीमेंट हुआ है। तो चलिए वापस से स्लम्प पे आते हैं। द प्राइस हैज स्लम्प्ड टू इट्स लोवेस्ट लेवल, जो प्राइस है वो उसके लोवेस्ट, नीचे से नीचे लेवल पे गिर चुके हैं। स्लैश समथिंग, यानी कि कोई चीज को बड़ी भारी मात्रा से कम कर दिया जाना। द फेडरल रिजर्व हैज स्लैश्ड द डिस्काउंट रेट, जो फेडरल रिजर्व है उसने डिस्काउंट रेट को बड़ी भारी मात्रा से कम कर दिया है। नेक्स्ट है वाइप समथिंग ऑफ समथिंग, वाइप आउट हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था। वाइप आउट यानी कि रिमूव कर देना कंप्लीटली, तो वही यहाँ पे यूज होगा, रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग क्विकली और कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से, जल्दी से और पूरी तरह से किसी चीज को साफ कर देना, हटा देना। The recession has wiped billions of the stock markets around the world. जो ये रिसेशन है, जो मंदी आई है, इसने वाइप कर दिया है, इसने कंप्लीटली खत्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है स्टॉक मार्केट्स को अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है टर्मोइल। टर्मोइल अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ऐसी स्टेट जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो। तो इसके लिए हम एक और सिनोनिम यूज कर सकते हैं, दैट इज chaos। एक और सिनोनिम यूज किया जाता है, दैट इज रकस। द मार्केट इज स्टिल इन टर्मोइल, यानी कि अभी भी डिस्टर्ब स्टेट में है मार्केट, जो है अभी भी स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, अनस्टेबल है। टर्मोइल यानी कि अनस्टेबल। नेक्स्ट है वोलेटाइल। वोलेटाइल का भी यही मीनिंग हो जाता है। टर्मोइल और वोलेटाइल को हम एक दूसरे के सिनोनिम्स में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अनस्टेबल है अभी भी। वोलेटाइल कभी भी चेंज हो सकती है, लाइकली टू चेंज सडनली, और अचानक से चेंज हो सकती है, वहां पे हम इस वर्ड को यूज करते हैं वोलेटाइल। द मार्केट रिमेन्स वोलेटाइल, मार्केट अभी भी अनस्टेबल है। लास्ट वर्ड है हमारा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का भी वही मीनिंग हो जाता है कि अचानक से बदलाव आ जाना, अ लॉट ऑफ सडन चेंज। जैसे ये कई बार ना यूजुअली राइड के केस में यूज होता है, राइड या ड्राइव के केस में, या फिर अगर आप बाय एयर कहीं जा रहे हो तो वहां पे भी आपने सुना होगा टर्बुलेंस के केस में इस तरह से आप रिएक्ट करिए वहां पे। सो टर्बुलेंस यानी कि अचानक से जब चेंज आ जाए, या फिर ऑल्सो अ बम्पी राइड, जिस राइड में, जो राइड या ड्राइव जो है वो स्मूथ ना रहे, जिसमें ऊपर नीचे होने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंस। और उसके लिए जो एडजेक्टिव है वो हो जाता है टर्बुलेंट। एग्जाम्पल में आते हैं, देयर इज लाइकली टू बी शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस इन द मार्केट। पॉसिबिलिटी है, लाइकली मीन्स पॉसिबली। सो एक पॉसिबिलिटी है कि छोटे से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए एक टर्बुलेंस आ सकता है मार्केट में। तो ये हमारी आज की वोकैबुलरी थी, ये आपका टास्क रहेगा, इसी वोकैब बेस्ड है ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये देखना है ये पॉजिटिव है, गुड है या बैड है किसी भी कंपनी के लिए। अगर गुड है आपके अकॉर्डिंग तो जी आप मेंशन करोगे, अदरवाइज आप बी को मेंशन करोगे अपने आंसर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं इनके एंटोनिम्स आपको मेंशन करने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जितने भी वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं इनके आपको सेम या सिमिलर वर्ड लिखने हैं, सिनोनिम्स आपको यूज करने हैं यहाँ। और इसके अलावा ये है आपकी कन्वर्जन वाली एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइजेस हैं, दोनों को आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। कंटिन्यूअस की है ये सारे, आप देखोगे सेंटेंसेस को कंटिन्यूअस में तीनों ही मैंने यहाँ पे तीनों ही टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।